पहलगाम के अटैक के बाद पाकिस्तानियों के साथ साथ मुझे भी लोग पाकिस्तानी समझ के गाली बक रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आई एम इन इंडियन और मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, तो प्लीज मुझे गाली ना बके। A question. One second, Gaurav. Now, Gaurav. There's a popular choice question today. There is. A normal fool would not get fooled by what you are saying. Okay, now. अहिले भारत र पाकिस्तानका मिडियाहरू बीच ठूलो दोहोरो मुठभेड जस्तै भएको छ। हुन त युद्ध भनेको बहुआयामिक कोणबाट लडिन्छ, मिडिया वार पनि उत्तिकै चलिरहेको छ र भारतीय मिडियाहरू एक ठिक्का भएर पाकिस्तान विरुद्ध खनिएका छन् भने पाकिस्तानी मिडियाहरू पनि भारतीय पक्ष विरुद्ध खनिएको छ र भारत र पाकिस्तानी मिडियाहरूको यो वार पनि गम्भीर भन्दा पनि मनोरञ्जनात्मक बढी भइरहेको छ, अर्थात् हास्यास्पद बढी देखिन्छ, किनभने यसले पत्रकारिताको सामान्य मूल्य र मान्यतालाई पनि धजी उडाइरहेको सँगसँगै देखिन्छ। हेरौँ न केही झाँकीहरू। Bharat Mata, everyone on. Let's say it together. Bharat, everyone on. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Vande. Vande. See. Rajiv Desai won't say it. Rajiv Desai won't say it. Did you see Rajiv Desai won't say it, Sanju? Well, I am questioning it. I am questioning it. Deal with it. Deal with it. You sounding demented. Say Bharat Mata ki jai. Say Bharat Mata ki jai. You're demented. Say, Congressman, say Bharat Mata ki jai. Whole thing to anybody here, and they'll all say you're the. I'm demented asking guy. you. Everybody knows you're You demented. pseudo-secularist, intellectual frauds. We are saving grace in Afghanistan, and that is the reason he only rented music to your ears, dirty ears, right? And he cannot slap sanctions, let me tell you now, and I tell you, mind it, remember it. He cannot, till the time America is in Afghanistan, they cannot slap sanctions on Pakistan. Pakistan is not India. India is nothing in the region. Right. What Gorevaria? It was Arasin Singh. I want to Slap have sanctions. him Why do you forget? opposing me. After your nuclear blast, did What? they slap sanctions or no? What? What आपके ऊपर sanctions? sanctions लगाए गए थे कि नहीं? Sanctions are something which hurt you. What do you mean what sanctions? You've forgotten. Sanctions are something which hurt you. We were not Sanctions hurt, on you right? hurt us. We get them about such sanctions. What? We were never hurt Sanctions by on those Pakistan hurt India. We went down to build JF-17. This is your level of We went down to geopolitical build knowledge. Al-Khalid 3. We went down to build Augusta. You we can- went down to improve our missile Sir, technology. एक मिनट. What are you कर्नल साहब, talking? ये सब Gloria, ये you जो are strategic आप studies जितने भी expert. अरेबिक ये जो Common अरबी नाम है ना, sense ये इस्तेमाल फ्रॉड करें, मेजर आपके, साहब। ये अल क्या बात खालिद कर और रहे हैं आप? ये जो Oh, shut up. आपके अफगानी नाम don't है, stoop गौरी low. No, गजनवी. talk to me Please like don't a say man. this. Talk We argument. know the truth. No, I We know expect the argument from you. truth. These are all Chinese missiles. जबरदस्ती मत करें आप आप। Chinese आप मिसाइल सीधे को हरा discussion पेंट में करके मेरे उसके साथ। ऊपर गौरी लिख देते हैं. You think that we'll be impressed? Have I'm a sorry. heart. Nobody's impressed. Have a heart. You have all these fraud Sorry, Chinese you should be missiles sorry, जिसके yes. ऊपर you would be painted sorry. green and you write You funny are names. sorry. You will be sorry. You are very rightly sorry, because we are far ahead of you in R&D on military defense production. You are no match to us. We have 6 squadrons Absolutely, of sir. J-17. Absolutely, For you are far information. ahead of us. And we are in, going on. Sir, you are far ahead of us in the export of terror also. We are nobody. Fighter, right? We don't do it. We will I not have do You a are it. a question terrorist to ask nation. That you. is all that you have managed to do. Fazul Rahman, What utter question. तो कैलेंडर की तारीख जैसे ही 30 अप्रैल से 1 मई होगी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्या बोला तूने? तो कैलेंडर की तारीख जैसे ही 30 अप्रैल से 1 मई होगी, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में भारत के खौफ से बौखलाहट है, खलबली मची हुई है। भारत के एक्शन से पाकिस्तानी सेना डरी है। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफे की झड़ी भी लगी है। 2 दिनों में हजारों जवानों ने छोड़ दी है नौकरी। पाकिस्तान के डिफेंस का ये हाल है कि भारत ने जिस तरीके से एक्शन की तैयारी की है, उससे डर करके कई सैनिकों ने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। तो दी बड़ी चुनौती, विंग कमांडर अक्षय कुमार और मेजर जनरल सनी देओल की पाकिस्तान में घुस के मारने की चुनौती। कहा 100 करोड़ के बजट की मूवी बना के पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दीपिका पादुकोण ने भी पाकिस्तान को दी बड़ी चुनौती। दीपिका ने कहा 500 करोड़ के बजट वाली मूवी में पाकिस्तान की जासूस बनके पाकिस्तान से गद्दारी करूंगी। 11 दिन गुजर गए हैं, आप अटैक करें ना। आपके पास राफेल है, आपके पास नरेंद्र मोदी है, आपके पास अमित शाह है, आपके पास अजीत डोवल है,
ये गधे सारे क्या कर रहे हैं? इनको आप आउट करवाइए। इनको नहीं एक सेकंड, उनको टीवी पे बने रहने दीजिए, टीवी पे बने रहने दीजिए। जाके क्यों नहीं? अब जाओ ना फिर बॉर्डर पे। आप चलो मेरे साथ। चलो मैं चलो आ जाओ चलो यही से चलते आ जाओ। चलो आओ आओ मैं तो साथ चलो। चलो आ जाओ चलो। अभी शो कर लेते हैं, उसके बाद चले जाइएगा आप लोग। देवकीनंदन शो के बाद चले जाइएगा, अभी आ जाइए। पहले पासपोर्ट तो ले आओ अपना, पहले पासपोर्ट तो ले आओ। पाकिस्तान जाने के लिए सुनो, पाकिस्तान जाने के लिए टिकट भी मुझसे चाहिए। शो के बाद चले जाइएगा, टिकट से नहीं जाना। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। और इसी के साथ टाइम्स नाउ भारत का ये हेलीकॉप्टर अब पहुंचा है गुजरात के आसमान की तरफ, जो आपको बताएगा कि समंदर का ये विशाल स्वरूप आखिर किस तरह की हलचल बता रहा है। समंदर से Stop going on, try and expand your vocabulary beyond the word fool, and I will come back to you. I don't know what the Pakistani vocabulary I is. am little dignified. The word which I want to use is too grave, right? You can't stand it, which is fitting for you. Your behavior warrants that words. But I am dignified. I can't. I've had my share of amusement right now, Colonel Shafkat Saeed. Listen to me. बुज़दिल भारतीय फौज के हमलों के बाद पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब पर भारतीय मीडिया चीख उठा। 4 जहाज तबाह होने का एतराफ कर लिया, साथ ही अवाम को तबाही की फुटेज भी दिखा दी। पाकिस्तान के मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाई पर भारत में शदीद हलचल मच गई। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारतीय मीडिया ने 4 जहाज तबाह होने का एतराफ कर लिया। इंडिया टुडे ने तबाही की फुटेज और तस्वीर भी जारी कर दी। As we have been reporting since early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force Garud commandos and everyone has come to the location. The periphery has been completely sealed. सीज फायर और शिमला मुआहदे की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी पर गोदी मीडिया का दोगलापन भी खुलकर सामने आ गया। पाकिस्तान पर हमलों के बाद भारतीय मीडिया ने बेसरोपा बयानात शुरू कर दिए। भीमबर गली पुंछ में राजौरी का ये पूरा इलाका है, जहां पर अब पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करना शुरू कर चुका है। भारतीय मीडिया की बुकलाहट के साथ साथ इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुसलमानों के कारोबार को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश में कराची बेकरी पर धावा बोल दिया। गुंडों ने नाम फौरी तब्दील करने की धमकियां भी दे दी। की तरफ से इंडिया को राब्ता किया गया और कंडेम किया गया है पहलगाम इंसिडेंट को, और न सिर्फ तालिबान बल्कि G20 से भी इंडिया का राब्ता हो चुका है। और वो कंट्रीज में भी कितनी कंट्रीज इंडिया के इस टाइम साथ खड़ी हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ट्रंप ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के हक में या पाकिस्तान के हक में, उसके ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के दोनों साइड से जो एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, बॉर्डर को टच करते नजर आ रहे हैं। जंग का माहौल है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर अब क्या रिएक्शन रखती है, क्या अपनी ओपिनियन रखती है, खास तौर पे अबूजर भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अबूजर भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे, इस टाइम जो एक माहौल बन चुका है, जंग का माहौल है और बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इंडिया के लोग तो भरे पड़े हैं गुस्से से कि हम तो बदला लेंगे और जल्दी अटैक करेंगे। कब अटैक, ये क्या पॉसिबल है नहीं है इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, देखिए रिटेलिएट तो करेंगे। अच्छा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। उसकी मेन रीजन ये है कि इंडिया की ना बहुत ज्यादा जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर ना बहुत ज्यादा उनको ना जो उनका सॉफ्ट इमेज था वो एक हर्ट हुआ है। अच्छा। उनका जो सिक्योरिटी लैब्स था वो एक्सपोज हुआ है। अच्छा। तो उसको देखते हुए उन्होंने अपनी फेस सेविंग के लिए भले एक छोटे पैमाने पे ही सही पर करेंगे जरूर। वो कहते हैं छोटा पैमाना नहीं, आप पहले हम कश्मीर की बात करते थे, पूरे पाकिस्तान को जो हम उसको कवर करेंगे। नहीं, उस तरह तो चीजें चली जाएंगी वॉर की तरफ। इंडिया वॉर कभी नहीं करेगा, वॉर तो नहीं होगी ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। ये बताएं दुनिया के कितने कंट्रीज, खासतौर पे अगर बड़े कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, कितने कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, कितने पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक ही कंट्री है जो कि अभी मतलब पिछले 5 दिन की हम न्यूज देख लेते हैं। जैसे ही ये इंसिडेंट पेश आया तो उसके बाद दुनिया के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जैसे यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, रशिया के प्रेसिडेंट हो गए पुतिन, इसी तरह चाइना के प्रेसिडेंट हो गए,
लाइकवाइज यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ तक के फलस्तीन के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी है, उन्होंने कंडेम भी किया है और स्टेटमेंट भी दी है इंडिया के हक में कि ये मतलब मामला नहीं, कंडेम तो हम भी करते हैं क्योंकि कोई मासूम जान थी वो नहीं जानी चाहिए थी, सिविलाइज लोग थे ना, जब लड़ाई होती है तो वो आर्मी में या इंस्टीट्यूशंस में होती है, आम लोगों का इसमें क्या कसूर है, तो कंडेम किया गया। जबकि जब हमारे मुल्क में जाफराबाद का मामला पेश आया बलूचिस्तान में, जाफर एक्सप्रेस का भी महीना दो पहले की बात है, उसको किसी ने कंडेम नहीं किया, किसी इवन जो कि चीन है उसने भी उस मामले को उतना कंडेम नहीं किया, प्रेसिडेंट ने नहीं किया, एम्बेसी से शायद हुआ हो तो कंडेम हुआ हो। तो यहाँ से ये भी देखा जाता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन एक है सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान आइसोलेटेड है और इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये देखें इस मामले के बाद जो G20 कंट्रीज हैं, मैं भी यही बात करने लगा उनके साथ जो उनके हैं प्रेसिडेंट हैं इंडिया के नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल भी की। अब इस कॉल का क्या पर्पस है, वो बेसिकली इस टाइम भी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉर इन अ वे कि जब वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे पहले वो अपने जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि उनमें से कौन उनके साथ सपोर्ट करता है। सिर्फ एक ट्वीट भी बहुत मैटर करता होता है, कल जब इंडिया रिटेलिएट करे और मामला कोई पेश आए, कोई ट्वीट भी ना करे, वो मामला को इस हद तक लेके जा रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि बहुत से पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे ये बात की जा रही है कि इंडिया, या खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी कहा जा रहा है जी इंडिया सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, वो अटैक नहीं करेगा, ना वो अटैक कर सकता है। लेकिन आपने एक बात किया कि भाई वो अटैक या कोई ना कोई ऐसा एक्ट जरूर करेगा, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे तमाम कंट्रीज को अपने साथ ले रहा है या इंगेज कर रहा है या उन्हें इत्मीनान में लेके ऐसा करेगा। 100% करेगा, डेफिनेटली। देखें इंडिया है, $800 बिलियन की इकोनॉमी है, 1.5 अरब लोगों का मतलब वो मुल्क है। अब इस टाइम अगर आप इंडियन न्यूज देखें, जो उनका कंट्री नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, भले गवर्नमेंट ने देखे 4-5 काम किए, वीजा बैन किए, वाघा बॉर्डर परेड बंद की, इंडस वाटर ट्रीटी उन्होंने बंद की, लेकिन इससे पब्लिक के दिल को ना ठंडक नहीं पहुंच रही इंडियंस के। हाँ, पब्लिक की डिमांड, उनके सहाफी देख लें, मतलब जितने भी उनके जो स्टेट चैनल्स पे बैठे हैं, यूट्यूब सोशल मीडिया देख लें, उनकी डिमांड ये है, वो तो ये कह रहे हैं कि आप बकायदा चेक पोस्ट लेते जाएं, मुल्क के ऊपर कब्जा करते जाएं, डे बाय डे ना आप ऐसे आगे बढ़ते चले जाएं, लैंड इनका आप ले लें। तो अब इतने बड़े पैमाने पे जो उनकी डीप स्टेट है इंडिया की, वो नहीं करेगी मामला, क्योंकि जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है वो अपनी इकोनॉमी प्रायोरिटी देनी है ना, या उन्होंने अपनी इकोनॉमी को देखना है या फिर अपना वॉर में आ जाए और 10 साल पीछे चले जाएं। तो कभी भी कोई भी मुल्क, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बाहर में आ जाए, हम तो वैसे 100 साल पीछे हैं। अच्छा। हमारे लिए कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा शिमला एक्ट को खत्म करना ही हमारी इंटेंशन बताता है स्टेट की। ठीक है, नहीं हम तो हर बात में ये भी कह देते हैं ना कि भाई एटॉमिक पावर रखते हैं, अगर कोई ऐसा करेगा तो हम भी एटॉमिक पावर रखते हैं, एटम बम मार देंगे। हमारे मिनिस्टर कह चुके हैं, सेनेटर कह चुके हैं, मतलब हर बच्चा ये कह रहा है। हमारे पास अगर ये एक चीज, मतलब इसके ऊपर क्या इंडिया का नैरेटिव है या इंडिया का? ये जो बात कर रहे होंगे वो फूल होंगे। अच्छा, 22 बंदे ये बात कभी नहीं करते होते। ये एटॉमिक बम है, कोई शबरात पे या होली पे बजने वाले फटाके तो नहीं है। अच्छा। आप मारेंगे, आपको मरने दिया जाएगा। अच्छा। ऐसे तो नहीं होता ना, एटॉमिक वाले कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। जो रिटेलिएशन होती है, इवन वॉर भी अगर होगी, क्या साल चलेगी, 2 साल चलेगी? पहली बात यह कि हम वॉर को कितने दिन तक अफोर्ड कर सकते हैं? आपके पाकिस्तान के स्टेट बैंक में कितने पैसे पड़े हैं? 10-11 बिलियन डॉलर है। 10 में से $1 बिलियन यूज हो चुका है लास्ट मंथ में, 9 बिलियन है, और अभी उसकी IMF की इंस्टॉलमेंट आ जानी है। ठीक हो गया। तो आप कैसे वॉर को सपोर्ट कर सकते हैं? अच्छा, वॉर अकेले नहीं लड़ी जाती, वॉर के लिए आपके फ्रेंडली कंट्रीज भी होते हैं। तो चाइना है ना वो जो हमें नहीं, चाइना देखिए, चाइना कभी भी आपको वॉर में क्यों सपोर्ट करेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कश्मीर के मामले में उसका भी तो इंटरेस्ट है, वो CPEC का बात कर ले, इंटरेस्टेड होगा, GB के खित्ते में भी हाईली इंटरेस्टेड होगा, पर वॉर के अंदर वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, न्यूट्रल रह सकता है, सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, चाइना तब इंटरवीन कर सकता है अगर आप GB के इलाके या कश्मीर के कुछ एरिया को अपने असेस में लेते हैं, जिससे उसका पर्सनल इंटरेस्ट CPEC इफेक्ट होता है। ठीक है। उस सिचुएशन में वो भी वीटो की पावर रखता है, सिर्फ उस वजह से। वैसे क्यों नहीं सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? हिमालय से ऊंची दोस्ती है, सब कुछ है। नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हिमालय से ऊंची दोस्ती दोनों तरफा होती है। इस दोस्ती में लिया ही गया है, दिया कब गया है? ठीक है, मतलब दिया तो कुछ नहीं गया, और अगर कुछ दे भी रहे हैं हम उनको सिक्योरिटी, तो वो पेड़ दे रहे हैं। तो इंडिया से क्या फायदा चाइना को? इंडिया की 1.5 अरब की आबादी है, और चाइना इस टाइम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है चाइना में। तो जितने भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे बिकने के लिए? हमारा तो 25 करोड़ का मुल्क है, इंडिया का 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, तो उनकी सबसे बड़ी मार्केट है। खास तौर पे इस सिचुएशन में जब डोनाल्ड ट्रंप ने 145-245% तक भी टैरिफ लगाया हुआ है, तो वो सारा माल कहाँ जाना है? हाँ, रिसेंटली स्टेटमेंट भी आई थी चाइना की कि हम चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को बढ़ाया जाए, उनकी प्रोडक्ट्स और अपनी प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज किया। रिसेंटली स्टेटमेंट इसलिए आई, अब देखे ना, चाइना के प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल बंदा है, वो कभी वियतनाम या मलेशिया जैसे मुल्क में तो नहीं जाते। अच्छा। अब वो पर्सनली वहां पे गए हुए हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को लें, क्योंकि अब देखे ना, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री नहीं रोकी, टैरिफ के बाद भी उनकी इंडस्ट्री मामूल के मुताबिक चल रही है, उन्होंने अपने लोग बेरोजगार नहीं किए, माल हो रहा है, दिन ब दिन फैक्ट्रीज में बन रहा है। अब वो बिकने के लिए कहाँ जाना है? वो मलेशिया में भी निकाल रहे हैं, वियतनाम में भी निकाल रहे हैं। अगर वो इतने छोटे मुल्कों में निकाल रहे हैं, तो इंडिया जैसी मार्केट को तो कभी नहीं मिस करेंगे।
चीक हो गया। अच्छा, सुना है कि इसराइल और अमेरिका अपने फाइटर प्लेन इंडिया, कोई खबरें ऐसी आ रही हैं कि इंडिया बेच चुका है या बेच रहा है या बेचेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर? मतलब इसराइल और अमेरिका ओपनली इस मामले में इंडिया के साथ खड़े हैं अगर जंग होती है तो। अजी ये देखें, अभी कल के दिन ही F-35 उन्होंने इंडिया को गिफ्ट किया है। हमारे पास क्या है, मैसेज है लाउड एंड क्लियर। हमारे पास है अभी तक F-16, उनके पास आ चुका है F-35 और वो भी गिफ्ट किया है। अच्छा। अब बात ये है कि अमेरिका स्टैंड किसके साथ करेगा, तो वो इंटेंशन यहाँ से ही क्लियर हो जाती है। देखिए आज भी डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, जिसपे वो कह रहे हैं कि मेरे दोनों मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात हैं। ये 1000 सालों से कश्मीर के ऊपर लड़ भी रहे हैं, आई होप ये मामला सेटल डाउन भी कर लेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सपोर्ट करने की, तो जो पलड़ा भारी होगा वो इंडिया की तरफ होगा सपोर्ट के मामले में। पाकिस्तान से जो काम लेना था अभी तक तो वो लिया जा चुका है, लेकिन 100% अभी पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं होगी इस सिचुएशन में, क्योंकि पहला अटैक जो कि नैरेटिव इंडिया ने सक्सेसफुली बिल्ड किया है कि वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, इस वजह से पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया पे, इंडिया के भी मीडिया पे ये सामने चीजें आ रही हैं कि इसराइल का भी एक सिटीजन था जो कश्मीर में अपना टूरिज्म के हवाले से आया था, उसकी भी जान गई है, वो भी मरा है। इसराइली भी एक इंडिया के इस अटैक में मरा है। तो क्या इसराइल भी गुस्सा अपना जो सा वो कम करने के लिए इंडिया को सपोर्ट करेगा अगर जंग होती है? देखें, इसराइल और इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी ये जो सारी गाजा वॉर भी चल रही है उसके अंदर इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिकली प्ले किया, उसने इसराइल को भी एड भेजी और उसको गाजा को भी एड भेजी। और रिसेंटली इस मामले से 2 दिन पहले तो वो नेतन्याहू के साथ नरेंद्र मोदी बीच पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कहने से मुराद है उनके ताल्लुकात आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। वो डेफिनेटली ओपनली सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता इसराइल को। अगर इसराइल भी जो है उसे सपोर्ट करेगा, फिर सऊदीया के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतर है क्या इस टाइम? मतलब कौन सा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री बता दें या कोई दूसरा, मतलब यूरोपियन कंट्री बता दें, कोई कंट्री बता दें जो भाई इस टाइम पाकिस्तान के साथ ओपनली खड़ा है? जैसे इसराइल ने ओपनली कह दिया कि हम अपना उसके साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। यूएस ने प्रॉपर जहाज गिफ्ट कर दिया, अपना F-35 गिफ्ट कर दिया इस मौके के ऊपर। ऐसे ही कोई तुर्की हो गया, कोई ईरान हो गया या कोई कंट्री, ज्यादा नहीं, आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले तक जो फॉरेन हमारे मामलात थे विद अदर कंट्रीज वो बहुत बेहतर थे। अब ये देखें कि इमरान खान जब लास्ट विजिट पे अपने गए थे रशिया, तब तक भी मामलात बहुत बेहतर थे। अच्छा। उसके बाद मतलब रिसेंट पास्ट 2 सालों के अंदर एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो आपके, मुसलमान मुल्क छोड़ें, आपके साथ कोई मुल्क भी स्टैंड नहीं करेगा, इवन अफगानिस्तान भी नहीं। अच्छा। उसकी मेन रीजन ये, रिसेंटली पाकिस्तान ने 1 मिलियन रेफ्यूजीज अफगान जो थे उनको यहाँ से निकाल के वापस अफगानिस्तान भेजा है। और उससे पहले भी अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, आए दिन पाकिस्तान की और वहाँ पे अफगानिस्तान की जो भी फोर्सेज है इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान 100% आइसोलेटेड है, 100% आइसोलेटेड, और ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी अगर वार हुई। उसकी मेन रीजन ये है, पाकिस्तान ने तो ओपनली कह दिया कि हम रेडी हैं वार के लिए। अगर इवन इंडिया ने पानी भी बंद किया तो हम समझेंगे कि ये जंग स्टार्ट हो गई है, ये एक्ट ऑफ वार है। ये देखिए साफ ज़ाहिर है, अब जब कोई बंदा आपको धमकी दे रहा है तो आगे से आप फिर देते तो वो धमकी, जैसे बड़ा फेमस है, कहते मैं तेन एक कर देंगे, कहते मैं तेन वेख लांगा। अच्छा। वो कहना तो है उन्होंने, लेकिन हकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या है? वॉर आपकी बातों से नहीं लड़ी जाती, वॉर लड़ी जाती है आपकी